Dear students, our next topic in the biomolecules is organic compounds. That is, the compounds made up of carbon, hydrogen, and oxygen. They are called organic compounds. Similarly, the compounds made up of carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, they are also called organic compounds because they are the components of elements of proteins. Some minerals are also added in these organic compounds. तो first organic compound जो है we are going to discuss is carbohydrates, also called hydrates of carbon. Carbohydrates are the compounds. Carbohydrates किस एलिमेंट के बने हैं? That is carbon, hydrogen and oxygen. That means carbohydrates are the compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen. The carbohydrates, ये carbohydrates जो हैं, they are the main source of energy for all living organisms. All living organisms के लिए ये main source of energy है, because the food which is synthesized by the green plants, it is in the form of carbohydrates. क्योंकि जो खुराक पौधे, सब्ज पौधे तैयार करते हैं तो वो उसको खुराक जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होती है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज की फॉर्म में होती है, जिसकी फार्मूला है C6H12O6 glucose. That means the glucose is prepared by the green plants from carbon dioxide and water by a process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्पेशली लीव्स, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट्स, especially chlorophyll. These two things combine in chlorophyll in daytime, that means in the presence of sunlight, and they combine and change the solar energy of the cell into chemical energy. और chemical energy, जब solar energy chemical energy में तब्दील होती है तो इस दौरान रिएक्शन होती है, यूनियन होती है between carbon dioxide and water, which results in the formation of carbohydrate, that is glucose, and oxygen as byproduct. Both of these are most essential for all living beings, that because the oxygen released during photosynthesis, it is utilized by all organisms, either plants or animals, for the oxidation of food. Similarly, the carbohydrates produced during photosynthesis, they are used by all the plants as food for producing energy in their body. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, the main carbohydrates are the main source of energy and are synthesized by the green plants. These carbohydrates are synthesized by the green plants. Green plants and some chlorophyll containing organisms, microorganisms. Euglena, it consists of chloroplast, produce carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. इन दो की मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्रीन प्लांट्स इन दो को आपस में इनका तामुल रिएक्शन होती है, यूनियन होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इस दौरान सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यही केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जमा रहती है. दिस process
is called photosynthesis. इस तरह के ग़िज़ा बनाने को जो ग्रीन प्लांट्स तैयार करते हैं, सब्ज़ पौधे तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सिंथेसिस ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो एंड ग्रीन प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड. ग्रीन प्लांट्स का नाम इसलिए है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं उनका नाम इसलिए है कन्वर्टर्स, बिकॉज दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दूसरा नाम है प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड नंबर थर्ड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस. ऑटोट्रॉफस मीन्स विच प्रोड्यूस देयर फूड themselves. वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. The other organisms which are not able to prepare their own food. अब बाकी organisms हैं जो green plants के अलावा हैं, वो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते हैं. Therefore they are dependent directly or indirectly upon the green plants. Hence they are called heterotrophs. इसलिए उनको कहते हैं heterotrophs. Prepare their own food but obtain their food from autotrophs are called heterotrophs. The other organisms which are not able to prepare their own food but obtain their food from autotrophs are called heterotrophs. उनका नाम heterotrophs है जो autotrophs से अपना खुराक हासिल करते हैं. और द जनरल फार्मूला ऑफ, अब हमारे पास ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया. अब कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला है CnH2nOn. CnH2nOn. अगर C 2 है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन भी 2 है, या इसका फार्मूला है CnH2O whole n, वाटर च whole n, यानी एम मतलब गो हाइड्रोजन n, ऑक्सीजन n. यहाँ है कोई फार्मूला लिखित CH2O whole n, CnH2nOn. केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड, यहाँ पर फुल स्टॉप है. फिर है केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. इनको हम एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, कीटोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, CHO ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और कीटोन ग्रुप COO ग्रुप. ये कीटोन्स का ग्रुप है, ये एल्डिहाइड्स का ग्रुप है. इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में हैं. एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स. दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स. तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स. इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, नंबर 2 इज ओलिगोसैकेराइड, नंबर 3 इज polysaccharide. What are monosaccharides? They are simple sugars or simple carbohydrates. Yem ch lakad sugars asan, simple sugars asan, which can't be broken down into smaller parts, which can't be hydrolyzed, means broken down into smaller parts. Em hegne em bun hegne em sugar level asit ke carbohydrate level is ke is lowest level as a monosaccharide vanan ch. Therefore they are simple carbohydrates or sugars which can't be hydrolyzed to smaller units or smaller molecules. They have, इनमें कितने कार्बन होते हैं? इनमें अहमद कार्बन आसा C3 up to C7. C3 पे 7 सामत. अगर C दमो ये तो वैल्यू 7 H आशे 7 into 2 14 O 7 वो C7 H14 O7 आचवना heptane. वो 3 to 7 carbon atoms per molecule. प्रथ molecules मज कुंडी मार यम एक्स मज आसन 3, एक्स मज आसन 4, एक्स मज आसन 5, एक्स मज आसन 6, एक्स मज आसन कार्बन 7. अगर therefore they are named as, अगर 3 तेल गो ट्रायोस
C3H6O3 अगर 4 तेल गो टेट्रोस C4H8O4 अगर 5 तेल गो पेंटोस C5H10O5 अगर है 6 तेल गो हेक्सोस अगर 7 तेल गो हेप्टोस C7H14O7 गो इस पर्सन वनो असे यम हसा मोनोसैकेराइड्स छ तुम छ गजरावने यहां फ्रॉम कार्बन नंबर 3 अप टू कार्बन नंबर 7 यमन हसा वनो असे यम हसा गए मोनोसैकेराइड्स द कॉमन हेक्सोसिस आर कॉमन यम हेक्सोसिस आसान छ तमन वना ग्लूकोज बे फैक्ट्रोज फॉर एग्जांपल ये तो पेट कन मुझ ऐसे का गोल्ड कार्बोहाइड्रेट बनो प्लांटो एमो बाइक रजाव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तमो बनो ग्लूकोज ग्लूकोज इज फार्मूला C6H12O6 फैक्टर्स फार्मूला ति है आस में थोड़ा अरेंजमेंट आसा और योर हाइड्रोजन द कार्बन हो लक्ष्य में डिफरेंट फार्मूला कुनी C6H12O6 therefore lowest glucose monosaccharide मान glucose the fructose which are the chief source of energy लेकिन सर्च यूनिवर्सल यम चीज एनर्जी फराहम करा स्पेशल ग्लूकोज एम पतन गो ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड गो फ्रॉम 3rd कार्बन एटम अप टू 7 कार्बन एटम हेकन इंदिस मॉलिक्यूल्स मज हेकन ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेक्सोस हेप्सोस तो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स यम मोनोसैकेराइड्स तुम गो ग्लूकोज फैक्टरोस व्हिच आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी for living organisms. The polysaccharide, these are formed by the bonding together of 2 to 6 monosaccharides. अगर ज monosaccharide दयो पे शंतन monosaccharide bond में रलन ग्लूकोज रलन फैक्टरोज रलन ग्लूकोज 4 रलन फैक्टरोज 4 रलन ग्लूकोज 6 रलन फैक्टरोज 6 रलन ऐसे को बने यम सब आए ओलिगोसैकेराइड अगर ज रयाय पान में ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल यम बनावन डाइसैकेराइड अगर 3 रलाय ट्राइसैकेराइड अगर 4 रलाय टेट्रासैकेराइड अगर 5 रलाय पेंटासैकेराइड अगर 6 रलाय हेक्सासैकेराइड और दोयो पे शंतन यम मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स रलान छ आर कॉल्ड डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सासैकेराइड्स वो अगर ज रलाय डाइसैकेराइड 3 रलाय 3 मोनोसैकेराइड रलाय 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रलाय 3 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल रलाय वो ट्राइसैकेराइड 3 पेंटोस मॉलिक्यूल रलाय वो ट्राइसैकेराइड 4 रलाय टेट्रा 5 रलाय पेंटा 6 रलाय हेक्सा चाहे यम रिलेटन ट्रायोस पेंटोस ट्रायोस या टेट्रोस रिलेटन पान में यम बनावान छ क्या ये दयो पे शंतन मोनोसैकेराइड्स रलन तुम बनावन ओलिगोसैकेराइड्स अगर ज रलाय ज मोनोसैकेराइड ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल गई डाइसैकेराइड 3 रलाय ट्राइसैकेराइड 4 रलाय टेट्रासैकेराइड 5 रलाय पेंटासैकेराइड 6 रलाय हेक्सासैकेराइड दयो पे शंतन शयो अलाव ने के द सैकेराइड्स द डाइसैकेराइड्स आर मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स in the living cells दबा यम living cells छ एमन मज ज्यादा पानस यम ओलिगोसैकेराइड्स आसा का हालतस मज डाइसैकेराइड्स हिंद हाल में वो ओलिगोसैकेराइड्स आसा ज्यादा डाइसैकेराइड्स हिंद हालतन मज काथ मज यमन मज सेलन मज छ मौजूद आसा they are called double sugars एमच वन double sugars यम छ आसा in the form of maltose in the form of sucrose in the form of lactose या है यम maltose किस फॉर्म में सैकरोज किस फॉर्म में लैक्टोज किस फॉर्म में लैक्टोज वन दुधस में मौजूद सैकरोज जर्मिनेटिंग सीडन में इथे पे जो माल्टोस मौजूद आर द कॉमन डबल शुगर्स डबल शुगर्स यम जन दोन मोनोसैकेराइडन हंद बनामत छ वो ये ज मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ज मॉलिक्यूल रलन पान में क्या बने माल्टोस यहाँ बने फ्रक्टोज रलन तज बने सैकरोज या लैक्टोज इस पर हेको इस मिनट ये मस ओलिगोसैकेराइड्स छ ओलिगोसैकेराइड्स आर formed from the monosaccharides when 2 to 6 molecules of monosaccharides combine together, unite together, join together, bond together by glycosidic bonds. They form tri, tetra, penta, hexa, hepto, mono, disaccharides. यानी या ओलिगोसैकेराइड्स
तीसरा है पॉलीसेक्राइड। पॉली है पॉली जिसमें जिसमें a large number of monosaccharides will combine with one another. They are the carbohydrates that have a higher molecular weight and are formed by the polymerization of large number of monosaccharides. Yemen was large number from from 7 up to hundreds of monosaccharides. When combined together, they form polysaccharides. The monosaccharides are linked together. ये तमाम monosaccharides जिनकी bonding होती है, this bonding takes place by glycosidic bonds. जिस तरह से glycosidic bonds हमने DNA में देखा कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो बॉन्डिंग है, that is also glycosidic bond. The general formula of polysaccharides is, polysaccharide की general formula क्या है? अगर ये C6H10O5 whole n, C6H10O5 whole n इसकी फार्मूला है, where n is the number of monosaccharide, n हेको ऐसे या सोच केमुक नंबर monosaccharide हुन, तब इस जोता सा C6H12O6, लेकिन बॉन्डिंग दरमियान ग्लूकोसिडिक बॉन्डिंग गसान छ अतनसन छ निमिक ज हाइड्रोजन द निमिक ऑक्सीजन कम गसान, where n is the number of monosaccharides involved in the form of polysaccharide. Polysaccharide and mazas n use number छ आमदी बोल n मन ऐसे कि कईटा polysaccharide छ monosaccharide कौन में रलियामत to produce the polysaccharide. The polysaccharides may be linear, in hekan axi series must be axi rhizomas hekan action, or they may be branched, ya hekan emen branches action, ag branch ne yapur, dag branch ne yapur, imzan pan me united asan, or branched or unbranched, im hekan unbranched the action, monosaccharide chains. ये monosaccharide chain आइए या आइए linear शुद्ध axis रिक्मस दे या आइए branched दे या unbranched दे. Structurally, there are two types of polysaccharides. The polysaccharide ना सच है structure मुताबिक बनावटी लिहाज ज़िक्सम एक चुनाव homopolysaccharide which are made up of only one kind of monomers. The homopolysaccharide is polysaccharide chain आज बनामत मारतामत आसन एक किस्म comma monosaccharide. This chain has glucose, this chain has fructose, this chain has lactose. आमद एक ने ब्याह कैसे कहें, लेकिन ये एक chain has polysaccharide has बनामत आमद आसन अड़ molecules, compounds, fructose, compound आसन saccharose, and अड़ compound आसन glucose compound आसन अड़ तो ऐसा का glucose compound है क्या ऐसे या fructose compound है क्या ऐसे और ये आमद से दो किस्म के monosaccharides तेल है कौन आत्मनियत homopolysaccharide के तेल मनो heteropolysaccharide. On the basis of structure, there are two types of polysaccharides. एक है homopolysaccharide, which are made up of only one kind of monomers, only one kind of molecules, only one kind of monosaccharides. That is starch, glycogen, cellulose, or made up of only glucose. Starch is then, glycogen is then, cellulose is then. Hemche banam sirif kemek glucose molecule raliamach baname large chains of glucose molecule tadi banam starch, tadi banam glycogen using cell mazan asan jama tadi banam cellulose, तो starch और glycose starch usually digest गसान human body मंज के ये animal मंज digest गसान तो इधर पर cellulose cellulose outer covering of certain animal मंज आसान ये और इधर पर जो glycogen जो ये glucose molecules पाने रला चे ये glycogen cell मंज रोजान store as food. Bago heteropolysaccharides which are produced from more than one kind of polysaccharides. ये जाने आई खुद ज़्यादा किस्म polysaccharide पान में रहन monosaccharide नहीं क्या polysaccharide आई खुद ज़्यादा one kind of polysaccharides पान में रहन मसलन अगर शो केराटिन
chitin, agar. For example, chitin. Chitin, CHITIN, chitin or agar. They are produced from more than one kind of mono more than one kind of monosaccharide. एक खुद ज़्यादा किस्म मोनोसैकराइड्स पान में रलन मिसाल के तौर पर अख मोनोसैकराइड आज ग्लूकोज बाक मोनोसैकराइड आज फ्रैक्टोज यानी इम किस्म के रलन पान में तम गए हेटेरो पॉलीसैकराइड्स तमन वनास तेले हेटेरो पॉलीसैकराइड्स मिसाल काइटिन दोयम अगर काइटिन यूजुअली फिशन मजन या एम्फीबियन मजन या रेप्टिलियन मजन तेज आउटर कवरिंग सह एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो इन पता गए फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर चीफ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पहली फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ फूड एंड चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दूसरी फंक्शन है सेलुलोज. चूंकि हमने देखा सेलुलोज as structural protein. Cellulose is a structural protein which is used in the synthesis of cell wall. Cellulose as structural protein is the main component of cell wall. Cell wall का main component है cellulose और cellulose जो है वो carbohydrates का बना है. These heterotypic of carbohydrates का बना है. इसी तरह से chitin, KITIN या CHITIN. Chitin is also found in the cell wall of fungi and skeleton of arthropods. Arthropods में भी ये cell wall होता है. Chitin is also found in the cell wall of fungi. Fungi hindis cell walls mas be arthropods hindis outer cell walls mas chu cell membranes mas chu asan chitin. Chitinous substance, a hard substance मौजूद. दोयम फंक्शन. त्रीम फंक्शन च पेंटोज शुगर यूसेस वुशान छ यतनस वुशास C5H10O5. This is pentose sugar. This is monosaccharide. It is the major constituent of DNA is mas वुशास pentose sugar, deoxyribose. RNA is mas वुशास ribose sugar, pentose sugar. Deoxyribose में वो O5 तामच O4 यूज. तो बेचो RNA ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में NADPH में एमएन में जो आसान कि इस पेंटोज शुगर जो इस important constituent. Therefore this pentose sugar, which is a carbohydrate, is the important constituent of DNA, RNA, NADP, NADPH, etc.
चौथी फंक्शन, ग्लूकोज इज आल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बनाने में भी ग्लूकोज का अहम रोल होता है। तो पांचवी फंक्शन है glucose in the form of glycogen is reserve food in animals। एनिमल्स में जो फूड रिजर्व रहता है कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज सेलुलोज और कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड्स विच आर स्टोर्ड इन द सेल्स। सेल में जो स्टोर फूड रोजान दैट इज ग्लाइकोजन, दैट इज स्टोरेज, दैट इज cellulose, the storage. These are not digested in the human beings, but they are digested in other kinds of animals। तो ग्लाइकोजन वो स्टोर रहता है ह्यूमन बॉडी में। तो सेलुलोज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। और इस तरह से ये 5 फंक्शन है। एक है चीफ सोर्स है, दूसरा है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मेन कंपोनेंट दैट इज सेल वॉल का ये सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन दूसरा कंपोनेंट है। सेल वॉल ऑफ फंजी और सेल वॉल ऑफ आर्थ्रोपोड्स का वो भी एक स्ट्रक्चरल जो बनाने में मदद देता है। ये दोनों स्ट्रक्चरल सेलुलोज भी और काइटिन भी, these are the structural proteins, the structural carbohydrates। और पेंटोज जो है ये भी स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट इज an important part of RNA, DNA, DPH etc। ग्लूकोज जो स्टोर होता है also help us in the formation of amino acids। तो पांचवी फंक्शन जो है वो है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज द मेन सोर्स ऑफ फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेन सोर्स ऑफ फूड है स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन सेलुलोज और कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये तीनों पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है विच इज फॉर्म्ड ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टोरेज भी पॉलीसेकेराइड है एंड सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को हमने डिस्क्राइब किया कि कार्बोहाइड्रेट्स किन से कहते हैं, ये कौन कौन से इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इसकी क्या अहमियत है और इसकी कितनी किस्में हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर इनकी फार्मूला जो है 3 से 7 कार्बन एटम्स तक को मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। और इसके बाद 2 से 6 तक जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड जो है दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स फ्रॉम 7 मॉलिक्यूल्स आफ्टर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीसेकेराइड्स की 2 किस्में हैं, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स एंड होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स में की चेन में एक ही किस्म के मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जबकि हेटेरो पॉलीसेकेराइड की चेन में 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा किस्म के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और इसकी कार्बोहाइड्रेट के अहम फंक्शन है चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द सेलुलोज, काइटिन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजी एंड आर्थ्रोपोड्स। चौथी फंक्शन पेंटोज शुगर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ DNA, RNA, NADPH। चौथी फंक्शन ग्लूकोज इज आल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। पांचवी फंक्शन ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एज रिजर्व फूड। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन सेलुलोज और द कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइंदा इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक